دیکھیے میں جو باتیں براڈلی سمجھ سکا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہو سکتا میرے نظریے کچھ الگ سے ہو اس میں۔ انسان جو ہے جس کو خدا بلا شبہ اس خدا کی دی ہوئی زندگی ہے جو انسان کو ملی ہے، قرآن کا کریٹیکل مطالعہ اس بات کو بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی شے ہے۔ قرآن کی کریٹیکل اسٹڈی، سائنس اس کو مانتی ہے، سائنس اس کو نہیں مانتی ہے، میرا کوئی سروکار نہیں ہے، میں اکارڈنگ ٹو دا قرآن کہہ رہا ہوں آپ سے۔ قرآن موت کے بعد کی زندگی کو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک میں نہ پڑے کہ موت کے بعد ہم زندہ کیے جائیں گے، اگر یہ شک کسی کے دل اور دماغ میں اگر ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کی ریڈنگ کو درست کر لے ایک مرتبہ۔ وہ موت کے بعد میں پھر ایک زندگی ہم کو دے گا، اس زندگی کا ملنا خدا کی مرضی پہ نہیں ہوگا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کتاب کی۔ حالانکہ خدا چاہے تو سب کو معاف کر دے، سب کو جہنم میں ڈال دے، سب سے کچھ نہ پوچھے، اتنا پاورفل گاڈ ہے ہمارا، لیکن اس کے باوجود کتاب یہ بات بتاتی ہے، میں صرف وہ باتیں کہہ رہا ہوں، نہ تو میں خدا کے پاور کو اور نہ خدا کی کسی چیز کو ڈسکس کر رہا ہوں، میں ڈسکس کر رہا ہوں واٹ دا بک از سیئنگ اباؤٹ دا ہیومن لائف۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی میں میں نے جو تم کو رکھا ہے، اس کے اندر میں نے تم کو ریسپانسبل بنایا ہے۔ ہر شخص یہاں پر رہے گا، ایکسیپشنل کریشن ہے ہیومنز، ایکسیپشنل یعنی استثناء ہے پوری کائنات کے اندر، جس کے پاس میں سوچ ہے، جس کے پاس میں آزادی ہے، جس کے پاس میں بولنے کی، سوچنے کی اور عمل کرنے کی اور عقیدہ بنانے کی چاروں آزادیاں موجود ہیں۔ یہ آزادی پوری کائنات میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ آزادی یہاں پر ٹیسٹ کریٹ کرتی ہے۔ یہ ٹیسٹ یہ ہے کہ خالق چاہتا ہے جس نے آپ کو بنایا، آپ اس کی بنوٹ جو آپ کی بنائی گئی اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ آپ کی بنوٹ ہے پورے انسان، پورے کائنات کے انسان کیسے پیدا ہوئے؟ وہ آدم تھا، اس کی پھسلی سے ہوا نکلی، سب جھوٹی بکواس کہانیاں، میتھالوجی ہے، میتھالوجی۔ قرآن کے وہ موضوع ہی نہیں ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا، گھوڑا کیسے پیدا ہوا، چاند کیسے پیدا ہوا، وہ قرآن کے موضوع نہیں ہے۔ وہ ہدایت سے جڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں تو قرآن ان کو موضوع نہیں بناتی ہے۔ قرآن کا مین موضوع یہ ہے، قرآن یہ بتا رہی ہے کہ تمام انسان، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے یوروپین ہو، چاہے انڈین ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے دیہاتی ہو، چاہے شہری ہو، یہ تمام انسان کی جو ڈیزائن ہے وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ قرآن کہہ رہی ہے، سورہ نساء کا آغاز پڑھیے حافظ صاحب، 4 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 1۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خبردار رہو خرابت والوں سے، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ ٹھیک، یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ عربی میں پڑھیے حافظ صاحب۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلقہم من نفس واحدہ، نفس واحدہ، کیا مطلب ہوا اس کا؟
शादी निकाल अरे छोड़ो यार, अब तो पुरानी वाली छोड़ती नहीं है तो दूसरी निकाह होती कहाँ है, तो निकाह को क्यों याद कर रहा है? जो पहला हुआ उसको भी छोड़ दीजिए। मिन नफ्सिन वाहिदा, हाँ, मिन नफ्सिन वाहिदा। तो सारे मुतरजिम इस आयत का तर्जुमा ये करते हैं कि ह्यूमंस हैव बीन मेड आउट ऑफ वन सेल, एक जान से बोल के आए। एक जान से। नफ्स का तर्जुमा, जान। कोई एक बोलता है वन थिंग से, आदम से, फिर हवा निकली तो फसली की कहानी, इन्फ्लुएंशियल आर्गुमेंट शुरू हो गया। कहानी आ गई। भाई यहाँ कुछ भी नहीं बोला गया ऐसा, यहाँ कुछ भी नहीं बोला गया। सिर्फ ये बोला गया है कि इंसान को खुदा ने एक ही नफ्सियात के ऊपर बनाया है। पूरे इंसान दुनिया के हर जमाने में, हर दौर में, जो आ गए और मर गए, जो है और जो आने वाले हैं, उन तमाम की नफ्सियात एक रहेगी। नफ्स वाहिदा, सिमिलर साइकोलॉजी। अब्दुल रहमान की और मेरी साइकोलॉजी एक ही है। गौस भाई ब्राज़ील में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन जब मैं उनके पास जाऊंगा तो मुझे मालूम है कि कौन सी चीज़ गौस भाई को नाराज़ कर देगी और कौन सी चीज़ गौस भाई को खुश कर देगी। हमारी साइकोलॉजी एक है। ऑल ह्यूमंस आर मेड ऑन सिमिलर साइकोलॉजी विथ सिंगल ओरिएंटेशन ऑफ साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी हमारी जो है, इस साइकोलॉजी में दो आंसर खुदा ने रखे। सूरह शम्स 91 नंबर का सूरा है, आयत नंबर 8। इस बात को आप जानिए और फिर उसके बाद में कुरान का मुताला कर लीजिए, आपको कुरान क्या है समझ में आ जाएगी। वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा। हमने एक नफ्स को क्या किया? संवारा, हमने उसको फैशन किया। आई हैव डिजाइंड अ नफ्स। किसमें? जो नफ्स वाहिदा पे पैदा किया, उस डिजाइन की बात हो रही है। नफ्स वाहिदा क्या है? उसके अंदर दो चीजें हैं। एक है तक़वा, एक है तक़वा, यानी अपने आप को हलाक होने से बचाना, एक नेचर है उसके अंदर। और दूसरा है फुजूरहा। फुजूरा के माने गंदे काम। डिबेचरी। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है इंग्लिश का है। डिबेचरी कहेंगे सर? और शरीफ साहब, डिबेचरी कहेंगे फुजूरा को? डिबेचरी उसको कहेंगे जिसको हम कहते हैं कि कोई उसूलों का ख्याल ना किया जाए, कोई पाबंदियों में ना रहा जाए, हर वो काम किया जाए जिससे आपको ज़ाती जिस्मानी तौर के ऊपर प्लेजर मिलता है, जिसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी है, शराब पीना है, सैर सपाटे करना है, समझ रहे ना, बातिल तरीके से माल कमाना है, ये सब डिबेचरी के खाने हैं। दो नेचर आपके पास में है। नफ्स फुजूरा। नफ्स जो है तक़वा और फुजूरा के बीच में पिंडोलम की तरह डोलती है। अब ये किताब, पूरी किताब आपसे दो मौजू की बात कर रही है। तक़वा क्या है उसको बता रही है, फुजूरा क्या है उसको बता रही है। तक़वे की तरफ दावत दे रही है और फुजूरा से रोक रही है। सूरह अंबिया कुरान का 21 नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 10 लीजिए आप। यह कुरान के बेसिस बता रहा हूं कि हाउ द कुरान रिलेट्स टू अस। हमने एक वो आ रहा ना, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी है जिसमें तुम्हारी याद दहानी है, फिर क्या तुम नहीं समझते? पढ़िए भाई, अरबी में पढ़िए। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने एक किताब नाजिल की, किसकी तरफ? कौन है तुम? नहीं है आप? अभी इलैकुम तुम पर। सिर्फ कारी नईम साहब और इन दोनों हैं।
इन दोनों के हाथ में किताब है। रीडर सब रीडर हमने लक़द अंज़लना इलैकुम देखो तुम्हारी तरफ किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम एक नाजिल की किताब, अफ़ला एक ताक़िलून। रिवलेशंस है जो अनवेलिंग कर रहे हैं हमारी किताब में से। वो क्या है? वो है तुम्हारे बारे में पूरी बातें, हमारी याद दहानी। तुम्हारी याद दहानी नहीं, तुम्हारी याद दहानी नहीं, तुम हो जो डिस्कस हो रहे हो इसके अंदर। हाँ, इट इज यू विच इज द बुक इज डिस्कसिंग ऑल अबाउट। फिर क्या तुम नहीं समझते? और फिर क्या तुम अपनी अक्लों से काम नहीं लेते? सोचो यार, खुदा कहता है अक्ल का इस्तेमाल करो, मौलवी कहता है अंधी तकलीद करो। मैं समझता हूँ मौलवी ज़्यादा सही है इसमें। अंधी तकलीफ में कोई करना कराना कुछ होता ही नहीं है। ब्लाइंड फार्म 4:17 को खाना बंद, 7:11 को खाना शुरू। क्यों कर रहे? तो नहीं मालूम कर रहे, बस रमजान आगे कर रहे। अरे तराविया कहीं को पढ़ रहे जाके 3-3 पारे, क्या समझ में आ रहा? नहीं पढ़ रहे, बस कुरान सुनना जरूरी है। तक तो जो है लोग बोलते थे वो सवाब होगा, अब तो ऐसे मैसेज आ रहे व्हाट्सएप पे, वो जगह बदल बदल के नमाज पढ़े तो जगह गवा देंगे, कहते 30 लाख ने क्या मिलेंगे। अच्छा छोड़िए, ये सवाब के चक्कर ने मुसलमानों को अजाब में डाल रखा है। गालिब कहता है कि सवाब के चक्कर ने डाला है मुसलमानों को अजाब में। समझे ना? तो अब आप बताइए, ये किताब में आपका जिक्र है, ये किताब आपके बारे में बात कर रही है। किसके बारे में बात कर रही? क्या चीज के बारे में बात कर रही किताब? ये बात कर रही है आपकी वो जो नफ्स वाहिदा है जिसके अंदर 2 अंसर है, एक फुजूरा के, एक तक़वा के। अब ये किताब पूरी तालीम आपको लेकर आ रही है कि पूरी ज़िंदगी जो गुजारेंगे उसका बेस क्या होगा? उसका बेस होगा खुदा ने जो आपकी फितरत बनाई है उसका सही इस्तेमाल जानना और उस फितरत को इन अकॉर्डेंस इस्तेमाल करना। उसमें जो तब्दीलियां आती है, तब्दीलियां कौन लाता है? शैतान नहीं लाता साहब। शैतान कोई बहुत बड़े हस्ती का नाम है भाई, आप उनको इतनी आसानी से नहीं बुला सकते इधर। उनके जो एजेंट हैं, अच्छा, उनके जो चमचे और एजेंट जो फ्रेंचाइजी शैतानों की खरीदी हुए मौलवियाँ, मुल्ला, पंडिता, ये आपको कंडीशनिंग कराते बिठा के। देख अब्दुल रहमान ऐसा हो जाएगा, आग में जलते जाएंगे, कहते हैं मौत आने से पहले फिर जिंदा करके फिर जलेगा, कहते फिर वो होते, फिर ऐसा पानी पूछते पिला देंगे, कहते क्या क्या की कहानियाँ सुना के खबर के अंदर बिच्छुआ सांपा आके पूरा चौतरफ से डसेंगे। अरे मुर्दे को डसे तो होता क्या नहीं? मुर्दे को आके सांप डसा तो क्या होता? बिच्छू डसा तो क्या होता? कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत हो गई, उसके सारे नफ्सियात खत्म हो गए। उसको डसो, चाहे सांप डसो, चाहे बिच्छू डसो, आग में जला दो, मट्टी में डाल दो, क्या फ़र्क पड़ा मुर्दे को? हमारे गौज़ बोले थे मेरे को सबसे ज़्यादा खबर के अज़ाब से डर लगता था। मेरे को भी वही डरता गौज़ भाई। अरे बोला क्या परेशानी है यारो, आते अंदर उठते मनो रब्बा का पूछेंगा, कहते अंदर घुसते ही फरिश्ता, अरे क्या परेशानी है। हो तो अब आप बोलो, आपको डरा डरा के एक देवड़ू खुदा का तस्वुर दे के आपको जकड़ दिया गया। ये जकड़ावापन आपको हैबत में डालता है और यह हैबत आपसे हर वो बेवकूफ़ी का काम कराती है जो इमेजिनेशन के बाहर। मजहब में इतना पावर है साहब, मैं मान गया मजहब के पावर को। स्टेट गवर्नमेंट बड़े बड़े प्लान्स बना रही, मेट्रो रेलवे आ रही, रोड वाइंडिंग के प्रोग्राम्स है, शमशान खबरस्ताना दरगाहें हैं रास्ते के अंदर, उसको हटा नहीं सक रहे साहब। मुर्दे सो रहे हैं, जिंदों को तकलीफ है मगर मुर्दे सो रहे हैं वहां पर, उनके आराम में खलल नहीं किया जा सकता। सोचिए साहब, मजहब के नाम पे जिंदा इंसान अपने आप को उड़ा देना साहब, उड़ा देना साहब, इससे बड़ा जुनून है। कितनी बड़ी लानत है। इंसान अपने आप को आग के ऊपर चला ले रहा। हम लोग अभी सफ़र में थे, अभी अय्यप्पा स्वामी के दिना चल रहे हैं, 50-100 मैं लोगों को देखा, बेचारे औरतें आदमियाँ नंगे पैर काले कपड़े पहन के, हालत की बेहालत है, बस पैदल चले जा रहे, तीसर की पोटली लेके। क्या बोले तो अय्यप्पा स्वामी के पास जा रहे हैं।
विजयवाड़ा में ना इतनी रश है यहाँ पर समझ बस स्टैंड से लेके जस्ट पब्लिक क्रॉस करने के लिए 1 आवर लगा, 3:30 निकला तो 4:30 बाहर है। रात दिन इतने बड़े चौड़ाव के ऊपर यही हाल हर मज़हब के अंदर है साहब, यही हाल हर मज़हब में है। अब आप सोचिए, वो समझ रहा है कि मेरा भगवान राज़ी हो रहा है, मैं जितना तकलीफ दूंगा, जितने मोटे छाले इतने ज़्यादा नेकियां। सोचो आप, बड़े बड़े लोग अपने आप को गुमराही में डाल दिए। क्यों? इंसान जो कायनात का तसव्वुर बनाया हुआ था, इंसान जो खुदा का तसव्वुर बनाया हुआ था, इंसान जो चीज़ों का तसव्वुर बनाया हुआ था, वो सारे का सारा फ़िलासफ़ी के बेस पे था। ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक फ़िलासफ़ी जो बड़े बड़े कौन कौन से गुजरे हो, सोक्रात और ये और वो सब, क्या बोला वो इल्यूजन है। ये पूरी दुनिया इल्यूजन। वेदांतिक नॉलेज में इसको क्या बोलते हैं? लीला। प्रभु की लीला है। लीला समझते हैं आप? माया, लीला बोलते हैं खेल, ड्रामा, जैसा बच्चे खेलते हैं ना। और किसी जगह बताया कि ये तो एक प्रभु का ख्वाब है जो चल रहा है, अभी प्रभु सो रहे हैं नींद में, वो नींद में ख्वाब देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है इधर, आंख उठते पूरी दुनिया खत्म हो जाएंगी। खत्म ख्वाब, आंख उठते खत्म हो जाता ना पूरा। सुर फूकने ना वैसा रहते आप ऐश्वर्या राय के साथ में ख्वाब में रहते, नींद उठते, उन्हें मुंबई में रहते, आप हैदराबाद में रहते, क्या लेना देना रहता फिर उससे? समझ रहे हैं? वही चाल प्रभु का हो जाएगा, उन्हें उठते ही पूरा सब खेल तमाशा कर। अल्लाह कुरान के अंदर क्या कह रहे हैं? 17 नंबर का सूरा आयत नंबर 36 में अल्लाह कहते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, यह देखिए, क्या मैंने इस ज़मीन और आसमान को क्या किसी बातिल के लिए बनाया? और खेल तमाशे के और क्या खेल तमाशा है? अल्लाह बोलता है कायनात की खिलकत एक मकसद के तहत की गई है। इस मकसद को बताने के लिए किताब आती है। वो मकसद क्या है? खुदा की तमाम रहमतें इस कायनात के अंदर समाई हुई है, और इस कायनात के अंदर खुदा ने जो बनाया है उन तमाम की चीज़ों को खुदा ने डिज़ाइन किया, खुदा ने पैदा किया, खुदा ने उनको फैशन किया, खुदा ने उनके मकसद को बयान किया, और उनके लिए ये ऐसे रहेंगे और ऐसा करेंगे, उनकी कदर फिक्स कर दी, और इस कदर को उनका मुक़द्दर बना दिया। इसको कोई भी इंसान, कोई भी ताकत ना ये पावर रखती है कि इसमें वो मदाखलत करे और इसके अंदर कोई तब्दीली लाए। यह है वो इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड। सूरह फुरकान 25 नंबर का सूरा, आगाज पढ़िए, आयत नंबर 4 पढ़िए। इस स्कीम को जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि खुदा के साथ में खुदा की अब्दियत क्या होती है। आप अब्दियत के नाम पे वर्शिप करते हैं, दंडम दंडम। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, पूरी कुरान के अंदर खुदा को मस्का नहीं लगा सकते आप, चाहे 1000 दंडम कर लीजिए आप, आपका कुछ नहीं होने वाला उससे। होने वाला आपका अगर कुछ है तो वो आपको इस किताब के मुताबिक जो अमल खुदा ने बताया, अगर वो करेंगे तो उसके नतीजे निकलेंगे आपकी जिंदगी। मैं आगे एक बड़ी गहरी बात बोलूँगा शैतान के ताल्लुक़ से, क्योंकि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बारे में तो अच्छी बातें करनी पड़ती है। हाँ, देखिए साहब, ये आयत पढ़िए आप पहले सूरह फुरकान की। आयत नंबर क्या था? आयत नंबर 4। 25-4 तर्जुमा तो पढ़िए। तो तर्जुमा पढ़ दीजिए शर्मों में। और मुनकिर लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक झूठ है जिसको इसने गढ़ा है, और कुछ दूसरे लोगों ने इसमें इसकी मदद की है, बस ये लोग जुल्म और झूठ के मुर्तकिब हुए। नहीं, 2 नंबर पढ़िए। और जिसके लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही है, और इसने कोई बेटा नहीं बनाया, और बादशाही में कोई इसका शरीक नहीं, और इसने हर चीज़ को पैदा किया और इसका एक अंदाज़ा मुकर्रर किया। ठीक। और लोगों ने इसके सिवा ऐसे माबूद बनाए जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते, ठीक। वो खुद पैदा किए जाते। क्या कह रहा है खुदा इसके अंदर? अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाई, उसकी कदरें मुकर्रर करी, और अल्लाह का कोई बेटा नहीं है बोला। ये बेटा क्या होता है?
कुरान में बेटा किसको कहा गया है? समझ रहे ना? बेटा कहते हैं अल्लाह का चहीता। इस्तिलाह होगी साहब। बाइबल की इस्तिलाह है ये। बाइबल के अंदर आप देखेंगे तो इस्तिलाह बहुत आई कि इब्राहिम मेरा पलकोड़ा बेटा था, पहला बेटा, और किसी को बोला है मेरा चहीता बेटा था। बनी इसराइल को कहता है कि ये सब मेरे बेटे थे। तो ये जो अकीदा है कि खुदा के बेटे यानी खुदा के मुकर्रब बंदे जो खुदा की खुदाई में खुदा को कुछ बोल के ज़रा हजरत वो थोड़ा अपने कुछ लोग जो मुशीराबाद में हैं कुछ थोड़ा उधर बारिश ज़रा उधर गिरा दिए तो अल्लाह के यहाँ बादलों को भेज के उधर गिरा देते। तो ऐसा खुदा के फैसलों के अंदर दखल अंदाजी करने की पावर रखने वालों को बाइबल खुदा का बेटा बोल के पुकारिए। तो अल्लाह बोल रहा मैं कोई ऐसा बेटा नहीं बनाया, मेरे पावर के अंदर कोई बीच में आ नहीं सकता। मैं किसी को मेरे साथ में आने की इजाज़त नहीं देता, चाहे वो नबी होंगे, चाहे रसूल होंगे, चाहे कोई भी होंगे। मैं हूँ, बाकी सब है। डेडलाइन है। मेरे नज़दीक कोई नहीं आना बोलता अल्लाह। बेटा के लिए इसमें क्या लगता है? इब्न। और अल्लाह यह बोलता है कि अल्लाह ने तमाम चीज़ें बनाई, बनाकर उनको क्या किया? क्या किया साहब? ज़र्रा वला नफ़ा वला यमलिकूना मौता वला हयाती वला नुशूरा। नहीं, पहले की आयत पढ़िए, 2 नंबर। बेटा नहीं बनाया ऐसे पढ़िए। इसने कोई बेटा नहीं बनाया और बादशाही में कोई इसका शरीक नहीं, और इसने हर चीज को पैदा किया और इसका एक अंदाजा मुकर्रर किया। हाँ, और लोगों ने इसके सिवा ऐसे माबूद बनाए जो किसी चीज को पैदा नहीं करते। यानी इसका मतलब क्या हुआ? खुदा ने चीज़ें बनाई, बादशाहत पूरी खुदा की है। यानी वहाँ मुल्क का लफ्ज़ है, बादशाह का लफ्ज़ है, तो ढूंढे तर्जुमे बादशाह। कोई इंसान है वो खुदा को बादशाह बनाने के लिए? एब्सोल्यूट पावर, अथॉरिटी, सोवेनिटी जिसको कहेंगे वो खुदा की है। उस सोवेनिटी के अंदर कोई शरीक नहीं है। और फिर उसके बाद में उसने तमाम चीज़ों की क्या कर दी? कदर मुकर्रर कर दी तकदीरा, और उनकी तकदीर बना दी उस कदर को। यानी वो उनका मुकद्दर है, उससे वो हट नहीं सकते। पानी अगर बनना है तो H2 मिलना, फायर ये करना, हर चीज़ की कदर बनाई हुई। ठीक, इसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है जब यह पूरी कदरें फिक्स कर दिया है तो अब तुमको क्या करना चाहिए? अब किताब का मकसद बताया जा रहा है कि मौत और ज़िंदगी इंसान ने क्यों बनाई, खुदा ने क्यों बनाई। आप जिंदा है, मरेंगे, फिर जिंदा होंगे। तो आप जो जिंदा है अभी वो क्यों है? देयर हैज टू बी रीजन फॉर इट। अगर घर में ये पंखा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोई टाइम आता है जहां पर गर्मी होती है, जिसमें खुलने से हवा आएगी, ये इसका मकसद है। हाँ, आम का झाड़ घर में बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, तो ये है कि साल में एक मरतबा आम देगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है इसका मकसद क्या है? सूरह मुल्क आगाज, सूरह मुल्क शायद 63 है। अब्दियत के ऊपर सही तरीके से और नहीं। हाँ? अब्दियत हाँ, अभी बोलता हूँ ना अब्दियत। बाकायदा तरीके से स्पीच रखनी चाहिए अब्दियत, अब्द का मीनिंग को, कि वर्शिप और सर्विंग में क्या डिफरेंस है उसको बताना चाहिए एक दिन पूरी तरीके से। बाकायदा एक पूरी रिक्वायरमेंट है उसकी, पूरी कुरान की आयत है, कम से कम 100 आयतें आएगी उसके अंदर। मैं साबित कर सकता हूँ इस बात को विदाउट एनी डाउट कि अब्दियत के माने वर्शिप करना नहीं है। सूरह मुल्क 67 है क्या? अच्छा पढ़िए साहब, आगाज पढ़िए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। क्या बात है? अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला ठीक, व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। पढ़िए, तर्जुमा पढ़िए। बड़ा बाबरकत है वो जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि वो तुमको जांचे कि तुम में से कौन अच्छा काम करता है, और वो ज़बरदस्त है, बख्शने वाला है, जिसने बनाए 7 आसमान बस ऊपर बस बस, तले। यानी मौत और जिंदगी का सिंगल पॉइंट मकसद है, सिंगल पॉइंट मकसद है। अगर आप जिंदा है तो वो जिंदा क्या मकसद है उसका? अहसन अमल, अहसन अमल आप करेंगे। 57
जिसके अंदर कहा गया ना कि मैंने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें. 57 है, وما 59 خلقت الجن والانس الا ليعبدون. 57 है, 59 है सूरह हश्र. 27. नहीं 57 नहीं, 57 तो हदीद है, 59 होना चाहिए. सूरह हश्र 59 है. 59 है. हाँ, मैंने जिन और इंस को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे. ये है वो फितना जिससे पूरा मजहब बनता है. अगर इस आयत को बारीकी से प्रोसेस अगर कर लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब से मुराद इबादत नहीं है, वर्शिप नहीं है, सर्विंग है. कुरान के कई मुतरजिम हैं जिन्होंने ये तर्जुमा सर्व करना किया है. 90% तर्जुमा इबादत किया, वर्शिप किया है. वो आयत नंबर याद नहीं आ रहा है मुझे. हाँ नहीं, याद आ रही 26 नंबर का सूरा, आयत नंबर 20 या 21 है सूरह शूरा. उसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से मुकालमा कर रहा है. उसके अंदर वो क्या कहते हैं देखिए, यहाँ वर्ड को समझ लीजिए आप. आपका वर्ड यहाँ क्लियर हो जाएगा अब्दुल रहमान, इसको समझिए. मूसा ने कहा, उस वक्त मैंने किया था और मुझसे गलती हो गई, फिर मुझे तुम लोगों से डर लगा तो मैं तुमसे भाग हाँ गया. हाँ फिर मुझको मेरे रब ने दानिशमंदी अता फरमाई हाँ. और मुझको रसूलों में से बनाया. ठीक. और ये एहसान है जो तुम मुझको जता रहे हो, तुमने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया. तुमने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया. क्या करा मुतरजिम तर्जुमा? गुलाम बना लिया. गुलाम. गुलाम. मुतरजिम उर्दू में तर्जुमा गुलाम कर रहा है. अरबी पढ़िए. कल कुरान पढ़ा था बहुत दिनों के बाद में, तो ये सूरह शूरा ही मुताले में थी मेरे. पढ़िए. क्या तू चाहता है कि बनी इसराइल को मेरे साथ इसलिए नहीं जाने देता ताकि तू उनको अपना अब्द बना ले? तो कौन सा फिरौन उनको अपना खुदा बिठा के वर्शिप कराना चाहता था? उनको अपना सर्वेंट बना ले, टू कीप देम स्लेव, टू सर्व हिम. क्या वर्ड आ रहा सर? قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة इन्हें होता था. अब तक बनी इसराइल थोड़ा इसमें कंफ्यूजन आता है कुरान में. 21 ले लो. ये 19 खत्म हो गई है, 20 शुरू हो रही है. 21 में तिलका नेमत में मैं निकाल दूं? नहीं, इसमें थोड़ा एक आगे पीछे आगे. हाँ, सब एक साथ कुरान नहीं है. एक कोई दूसरी कुरान ला लो, जूनागढ़ी साहब की ला लो ऊपर से. लेटेस्ट के अरबी की कहाँ आ रहा भैया? शूरा 20. 26-20 बोल रहे. मूसा ने कहा, ये कौन सा पढ़ रहा है? शूरा पढ़ रहा है ना? जी. शूरा की 20 नंबर पे आना है ना भाई आप. मूसा ने कहा, इस वक्त मैंने किया था और मुझे गलती हो गई, फिर मुझे तुम लोगों से डर लगा तो मैंने तुमसे भाग गया. फिर मुझे मेरे रब ने दानिशमंदी अता फरमाई और मुझको रसूलों में से बनाया. और ये एहसान है जो तुम मुझको जता रहे हो ताकि तुम बनी इसराइल को गुलाम बना लिया. अरे है ना यारो, यहाँ पर ये क्या इतना बड़ा अब्दी? बनी इसराइल फिर उसी आयत में यही है. अरबी में पढ़िए. वतिल का नेमतुन तमन्नुहा अलैया अन अबत्ता बनी इसराइल. अबत्ता, अब्द का मीनिंग क्या लेंगे यहाँ से? क्या कह रहा है मूसा? तू बनी इसराइल को मेरे साथ इसलिए नहीं जाने दे रहा है ताकि तू उनको अपनी खिदमत के लिए रख ले, अपने ऑर्डर्स को सर्व करने के लिए रखे. वर्शिप के मीनिंग नहीं आ सकते किसी भी शक्ल में अब्द में. यह आयत की नस याद रख लीजिए आप. बंदगी. बंदगी.
یعنی آپ کو خدا کے جو آرڈرز ہیں، جو احکام ہیں، وہ کہاں پر ہے؟ قرآن کتاب میں. اس کو آپ کو سرو کرنا ہے. یہ سرو کرنے سے کیا ہوگا؟ خدا خوش ہوگا. بھائی خدا غنی ہے، خدا کو تمہارے نہ سجدوں کی پڑی ہے نہ رکوع کی پڑی ہے. خدا کو کوئی پھٹی کوڑی کا لینا دینا نہیں ہے تمہارے سے ان معاملوں میں. اس کے واسطے تو بہت ہے، چاند ستارے اور ہر ذرہ اس کی عبادت میں لگا ہوا، اس کو چھوڑ دو، کرنے دو. ہاں، یہاں جب تم خدا کے بتائے ہوئے احکام پہ صرف کریں گے تو ایک نتیجہ تمہاری زندگی میں نکلے گا. وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس زندگی کے اندر تم کو اس کتاب کو ماننے کی وجہ سے ایک امن ملے گا، زندگی میں اطمینان اور سکون آئے گا. تو ہم نے موت اور زندگی بنائی تاکہ ہم جانچیں کہ کون ہے جو احسن العمل کرے. احسن العمل یہ ہے کہ اس دنیا میں ریزن بیسڈ لائف کو گزارنا، خدا کے احکام کے طریقے سے جینا، یہ دیکھنا کہ ہر میرا فیصلہ جب میں کرتا ہوں وہ مجھے امن اور سلامتی دے. زندگی کا مقصد ہے جب تک زندہ ہے امن اور سلامتی حاصل کرنا. یہ اسلام ہے، ٹو اٹین پیس. آپ یہاں ہر فیصلہ، ہر کام کر کر امن اور سلامتی حاصل کریں گے. یہ کہلائے گی عبدیت خدا. خدا کو آپ سرو کر رہے ہیں. یہ سرونگ کرنے کے اندر آپ کو کیا ہوتا ہے؟ مختلف فیسز سے گزرتے ہیں آپ. خدا کئی مرتبہ آپ پہ زبردست انعامات کر دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اترانے والے بن جاتے ہیں. خدا کئی مرتبہ آپ پہ غضب کرتا ہے. غضب تو گندا لفظ ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسے حالات ہوتے ہیں جس سے آپ کو جھلسنا پڑتا ہے، جس کو اوور کم کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، قبض کرنا پڑتا ہے. ہم نے انسان کو قبض میں پیدا کیا، اللہ کہتا ہے سورہ بلد میں. تو وہاں پر چاہے آپ پہ انعام ہو رہے ہیں، چاہے آپ پہ غضب ہو رہا ہے یا ہوا ہے، انسان غضب کر دیں گے. یار نوح کی قوم پہ غضب کس نے کیا تھا؟ خدا نے کیا تھا؟ انسانوں نے کیا تھا. موسیٰ کی قوم کے اوپر غضب کس نے کیا تھا؟ خدا نے کیا تھا؟ انسانوں نے کیا تھا. تو موسیٰ کو لے کے لوگوں کو لے کے نکلنا پڑا، گھر بار کاروبار چھوڑ کے ریگستان کے اندر رہے. اس کو غضب کہیں گے جو مومنین کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسے پورے حالات اگر ہمارے پہ ہوتے ہیں تب بھی آپ خدا سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم تیری سبیل کو نہیں چھوڑیں گے. سورہ فاتحہ میں کیا پڑھے آپ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے پڑھا، اور یہ کہتے ہیں پورا سورہ فاتحہ پڑھیے. کتنا عجیب و غریب ترجمے ہمارے پاس میں. سورہ فاتحہ پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین، ہاں الرحمن الرحیم، ہاں مالک یوم الدین، ٹھیک ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک. اہدنا الصراط المستقیم. نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم تجھے ہی صرف کرنا چاہتے ہیں، تیری ہی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اور اس بندگی کو میں سر انجام تک پہنچانے کے لیے میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ میں اپنے خود ہی سے کر لوں اس کو. تو ہم اس میں کیا چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. نہیں، یہ چاہتے ہیں تیرا تعاون، تو تعاون کر کے میں سیدھے راستے پہ رہوں. تیری مدد چاہتے ہیں، تیرا تعاون چاہتے ہیں، میں اپنا جو عمل کر رہا ہوں اس عمل میں تیرا تعاون شامل ہو. خدا لا کے سیدھے راستے پہ نہیں ڈالے گا. سب آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے، خدا تعاون کرے گا آپ کے ساتھ میں اس راستے کو مینٹین کرنے کے لیے. یہ ہر وقت ہے، ہر وقت ہے، ہر پل ہر پل ہر پل ہر پل ہر پل. اس سے موت اور زندگی کے بیچ کا کوئی لمحہ چھوٹا ہوا نہیں ہے. زندگی میں ایسے مسائل آتے ہیں. اور یہ کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ تاکہ میں ایک صراط مستقیم پالوں. یہ صراط مستقیم آپ کا مین مدعا ہے کہ مجھے ملے. یہ صراط مستقیم جب آپ کو ملتی ہے تو اس سے پہلے آپ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. آگے پر ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم، ایسی صراط جس پہ میں چلوں اگر مجھ پہ انعام ہو.
ये जिस पे इनाम हुआ वाली बात नहीं है, आपकी बात हो रही है। जैसा अलैहिम आया ना, हाँ अलैहिम, हाँ, वो रास्ते जिन पे चलने से इनाम हुए, अच्छा वो रास्ते की तरफ आई। वो रास्ते की तरफ है, इतलाक उसका ज़मीर का हो, आप किसी इंसान की तरफ नहीं है, रास्ते की तरफ है। वो रास्ता जिस रास्ते पे चलने से मुझ पे इनाम हुआ, वो तरीक़ेकार वो तरीक़ेकार, ये सही बात बोले सुबह, वो तरीक़ेकार जो इख्तियार करूं जिससे मुझे वो दूसरा क्या है फिर, इनामात हासिल। इनाम तो अलैहिम, हाँ, जिस पे इनाम हो, हाँ, और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, यानी ऐसा रास्ता जो गैर गज़ब का हो। गैर गज़ब का हो, यानी कोई रास्ता मैं चल रहा हूँ उसमें अगर मेरे साथ में गैर गज़ब भी हो रहा है और इनाम भी हो रहा है, दोनों मर्तबा तेरा ताउन चाहिए मुझे, वाह, इधर भी उधर भी। इधर भी इधर भी। ये आपके बारे में बात हो रही, लोगों की पिछले और आगे की बात नहीं हो रही। मैं इतना एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा हूँ इस आयत को, लेकिन इसका करेक्ट ये है। अभी भाई फिर बोलिए। यानी आप अल्लाह से क्या पूछ रहे हैं, अल्लाह को एक अहद कर रहे हैं आप कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। या का नाम बताओ। हाँ, इया का नाबुदो इया का नस्तईन, मैं तेरी ही बंदगी करता हूँ और मैं तुझी से मदद चाहता हूँ, तू मुझे सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता से मुराद क्या है कि मुझे एक स्ट्रेट पाथ बता जिसके अंदर कोई उलझन ना हो, मैं जिसकी तरीके से ज़िंदगी को चला सकता हूँ। कौन सी इंसानी ज़िंदगी किसको बोलते हैं जो सादी सीधी सीधी ज़िंदगी है, कौन सी होती है वो? कोई करोड़पति की होती, कोई प्रोफेसर की होती, जिस जिंदगियों में पीस होता उस जिंदगी को कहते हैं कि ये सीधी जिंदगी है साहब। तो आपका मकसद है कि खुदा की बताई हुई राह और सबीलुल्लाह जो है उससे मैं कभी नहीं हटूं, इसके लिए तेरी मदद मुझे चाहिए, क्योंकि मैं तेरे ऑर्डर्स को मैं सर्व करना चाहता हूँ। ये आप अपने खुदा के साथ में अहद कर रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी जिसमें खौफ और हुस्न ना हो। हाँ, ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई खौफ हो ना कोई हुस्न हो। फिर उसके बाद में जब आपकी ज़िंदगी में अगर इनाम हो रहे हैं या कोई गज़ब आ जा रहा है, यानी इवेंचुअलिटीज़ अगर आ रही है आपकी ज़िंदगी में, इनाम भी आ रहे हैं और इवेंचुअलिटीज़ भी आ रही, तब भी मैं अपनी राह से ना भटकूँ। नशे व फराज में हर दोनों सूरत के अंदर, चाहे मेरे अंदर कमी हो गई या मेरे में अच्छा हो गया, अगर कुछ पा लिया तो मैं इतराने वाला ना बनूँ, और अगर मुझसे कोई खो गया तो मैं इब्लिस ना बनूँ शिकायत करने वाला। हर मर्तबा मैं सीधी राह पर। ये किताब के ये मुद्दे हैं। ये किताब आपको लाना चाहती है इस पे, और किताब जो आपको रोक रही है, कैसे रोक रही है? शैतान के बताए हुए डाले हुए वसवसों से किताब रोक रही है आपको। शैतान क्या करता है साहब? अगर मैं किसी से पूछूं कि साहब हजरत शैतान क्या क्या करते हैं, तो आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाएंगे मेरे को। जी नहीं, शैतान इतना कुछ भी नहीं करता। कुरान की एक आयत है, 7 नंबर का सूरा है, उसकी एक आयत है, अल्लाह ताला उसके अंदर 7:40 है या कौन सी याद नहीं आ रही मेरे को। अल्लाह ताला उसमें बोलते हैं इन्नमा, आयत इन्नमा से शुरू होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ। इन्नमा से मुराद होता है सिर्फ और सिर्फ। शैतान 2 ही चाल चलता है आपके साथ। मैं जो बात कर रहा हूँ इस बात की गहराई को पकड़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आइए। इस बात की गहराई को अगर आप पकड़ लेंगे कि शैतान क्या है और शैतान का वसवसा क्या है। शैतान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ 2 चीज़ें करता है। क्या करता है? वो फहाश का तुमको हुक्म देता है और सू की तरफ बुलाता है। फहाश क्या है? व्हाट इज फहाश? क्या बात है साहब, क्या बात। हर वो काम जो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में, सब का सब फहाश है। शैतान आपको अपने पंजे में फंसाता अनप्रिंसिपल बिहेवियर में डाल के, उसी की वजह से आपसे गुनाह सरद होता। समझ रहे हैं? तो शैतान के ये 2 वसवसे, इसको जहां यहां पर फहाश कहा गया है, हर वो अमल जब फहाश के तहत में होता है, सूरह शम्स की आयत नंबर 8 के अंदर उसको फुजूरा कहा गया है। उसी की तफसीर यहां पर फहाश है। हर वो काम जब आप कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि ये काम प्रिंसिपल बेस राइट है या नहीं है। तो अल्लाह क्या बोलता? मारूफ की पैरवी करो और मुनकर से बचो। मुनकर कौन है? हर वो चीज़ जो फहाश है,
जो बेरूपी है, बेरूपी है, सुबह में 4 बजे उठ के भूखा मरो, बेरूपिया काम है। हाँ? उन तमाम चीज़ों से बचते हुए अपने अक्लों का इस्तेमाल कर कर रीजन एंड प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ को गवर्न करो। कुरान का मेन मुद्दा यह है। ये क्यों करवा रहा है खुदा आपसे? ये इसलिए करवा रहा है कि पूरी यूनिवर्स का दीन इस्लाम यही है कि पूरी कायनात खुदा की ओबीडियंसी में लगी हुई है। खुदा चाहता है कि आप भी इसी तरीके से उसकी ओबीडियंसी करें। ये ओबीडियंसी आपकी ज़िंदगियों में पीस देगी। ये पीस आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके चलेगा, कौमें तरक्की करेगी, नेचर को हार्नेस करेंगे आप, उससे वेल्थ एक्वायर करेंगे, उससे लोगों के बेनिफिट्स एक्वायर करेंगे, हज़ारों लाखों चीज़ों के बेनिफिट्स बाहर निकल कर आएंगे। आपकी अगर ये सजदा रुकू वाली अगर इबादत खुदा से मतलूब है तो आज 1400 साल से तो दंडम चल रही है और 5000 साल से हिंदुओं के पास चल रही है, क्या साहब, और 2000 साल से क्रिश्चियनों के पास चल रही है। क्या हो गया इस दंडम से, मेरे को बताइए आज तक आप। हाँ, लानत है इन मुसलमानों के ऊपर। 150 करोड़ कितने कितने करोड़ है नहीं मालूम है, एक सुई नहीं बना सके। हाँ, कोई एक कंट्रीब्यूशन इनका ह्यूमैनिटी के लिए नहीं है। इंसानियत पे एक बोझ बने हुए पूरी तरीके से, और इन द नेम ऑफ रिलीजन बोझ बने हुए। कौन है ये लोग जो कर रहे हैं? जिनको आप नास्तिक कहते हैं, जिनको आप शराबी कहते हैं, यहूदी, जिनको यहूदी कहते हैं आप, यहूदी यहूदी यहूदी, लानत किए हुए लोग, उन पे लानत हो रही है, आप पे सवाब हो रहा है। तो अब आप सोचिए, ये किताब का मुद्दा है खुदा की रहमतें जो कायनात में रखी हुई है, आप काय का इस्तेमाल करेंगे? आँख का, कान का, दिमाग का, दिमाग का, यहाँ दिमाग, यहाँ सोच आती है, एहसास यहाँ आता है। समझे आप? सोच का है, ये तो सोच का सेंटर है, एहसास यहाँ मिलता है। हाँ, दिमाग की बीट कम ज़्यादा नहीं होती, हार्ट की बीट कम ज़्यादा होती सोच की वजह से। समझ रहे? तो जज्बे का रिफ्लेक्शन दिल कर रहा है, इसलिए खुदा उसको दिमाग कहता है, कल्ब। ये क्यों इस्तेमाल कर रहा है? ताकि तुम अक्ल से काम लेकर इसका बेनिफिट उठा सको। और अल्लाह कहता है, एक आयत है, याद नहीं आ रही मुझे, सूरह बनी इसराइल में ही आयत वो, रोज़ जज़ा के दिन अल्लाह बोलता कि तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान, तुम्हारे कल्ब, मैं तीनों को अकाउंट में लाऊंगा बोल रहा हूँ। आई विल पुट इट टू द अकाउंट, ऑल द 3। तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा सोचना, तीनों कॉन्फर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? चीज़ों को वैसा क्यों नहीं देखे जैसा कि खुदा ने उसको बनाया था? चीज़ों को नजरियात बना के क्यों देखे? खुदा ने कहा कोई नजरिया बनाओ, खुदा चीज़ों को दिखा रहा है। खुदा बोलता क्या है, गौर नहीं करते? आसमान से बारिश होती है, ज़मीन पे गिरती है, अनाज बन जाता है, सादी सीधी बात बता रहा, आप नजरिए बनाए हुए फिलासफियाँ झाड़ रहे उसके अंदर बैठ के। हाँ, अल्लाह को ढूंढने को निकल गए। तो भैया, ये किताब आपको ये बताना चाहती है कि सही ज़िंदगी गुजारने से आपकी ग्रोथ होगी। सूरह निसा की आयत नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने इंसान को नफ्स वाहिदा से बनाया। वो आयत पढ़ी है, उसके अंदर एक लफ्ज़ है जो मैं थोड़ा अलग तशरीह करता हूँ उसकी, रब्बकुम है उसके अंदर लफ्ज़। तो अब यह करता है अल्लाह, अल्लाह की तरफ रब का इशारा ले जा रहे हैं। नहीं, खुद की तरक्की के लिए नफ्स वाहिदा का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। रब मीन्स टू ग्रो, कीप ग्रोइंग। हर जगह रब खुदा नहीं है किताब में। या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम, रब्बकुम, तुम हीट करो अपनी ग्रोथ के ऊपर। अल्लज़ी खलक़कुम मिन, अत्तक़ू, हीट करना, पे सीरियस अटेंशन, टेक सीरियस नोटिस। इसके 2 तर्जुमे कर सकते हैं, टेक सीरियस नोटिस व्हाट द गॉड हैज रिवील्ड, एक, और पे सीरियस नोटिस टुवर्ड्स योर ओन ग्रोथ। रब्बकुम, तुम्हारी ग्रोथ के लिए नफ्स वाहिदा के ऊपर बनाया। ये नफ्स वाहिदा का सही इस्तेमाल अगर पॉजिटिव अगर हो रहा है तो क्या रिजल्ट दे रहा है आज पूरी वर्ल्ड के अंदर? सलामती, प्रोग्रेस, साइंटिफिक इरा, सारी चीज़ें आ रही। ये किताब के ये मुद्दे हैं। ये किताब ना तो साइंस की है,
तो मैथमेटिक्स की है, न तो ज्योग्राफी की। ये सरचश्मे हिदायत है। हर इंसान के लिए एक ही हिदायत खुदा हर मर्तबा रखा है, वही हिदायतनामा आपके हाथ में है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारा कि रसूल को गवाही देना पड़ रहा है रोज़ जज़ा के दिन कि मेरी कौम ने इस किताब को महजूर कर दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो बोले आप